just invite the wonderful people here, जिन लोगों ने इसको बैक किया है, एंड आई थिंक शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब से. शुभ शेखर भट्टाचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन. द मैन, सम मेजर फैन फॉलोइंग यार, कमाल. यू नो, he's backed this project with all his might. इससे पहले भी whatever you've done दादा, उसको बड़ा सारा प्यार मिला है देश दुनिया में. Of course, the last year with अमिताभ बच्चन साहब, दो दूनी चार, of course ऋषि सर, नीतू मैम. मतलब मिथ्या की बात करें, एक से बढ़कर एक एक्टर्स के साथ आपने काम किया है यहाँ पे. इस कास्ट के लिए what do you have to say? First things first. What a wonderful bunch of actors we've got in this movie. I mean, तो अक्सर ये मतलब काफ़ी रिएक्शंस थे हमने जब बताया कि ये 5 मिनट दिखानी है हमें पिक्चर की. तो यार 5 मिनट कौन दिखाता है यार. ट्रेलर 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, मैक्सिमम 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो व्हेन यू हैव सच पावरफुल एक्टर्स ना, वी आर सो लकी टू हैव फाउंड दिस ब्रिलियंट बंच ऑफ एक्टर्स. माने एक से बढ़कर एक, आप पूरा सीन देख लो. एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी थॉट अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली, अक्सर होता क्या है व्हेन वी गेट इनटू दिस जॉनर फिल्म्स ना, तो हम गिमिक्स विमिक्स में, डराने के चक्कर में, जंप स्केयर, दिस दैट एंड द अदर, उसमें घुस जाते हैं. बट व्हेन यू हैव सच ब्रिलियंट एक्टर्स एंड ईच सीन, आई एम टेलिंग यू, ईच सीन, मतलब मन तो कर रहा था कि पूरा पिक्चर ही दिखा दूं अभी. ठीक है, देख लो जहाँ तक मर्जी है, देख लो, 15 मिनट दिखा देते हैं. ठीक है. So when you have such brilliant actors and when the visuals have been created so brilliantly by Abhinav, what brilliant visuals, Abhinav, what lovely. And Shupratim, where are you? Shupratim, yeah, our cinematographer, visuals देख के पता चल गया होगा. Yeah. What lovely visuals, such sound design. Look at the musicians we have here. Suchita, Karan, where are you, Karan? Center back, there, okay. So Karan and Rahi is missing right now, he's in Kashmir, मजा ले रहा है वहाँ पे. तो when you have such brilliant team, everything, the sound design, everything, you know, is so brilliant कि मन कर रहा था कि, you know, sorry, you asked me about actors, right? Yeah, they are brilliant, thank you. Moment, sir. You can just go on and on. एक और चीज, you know, राइटिंग की बात कर लेते हैं. ऑफ कोर्स जो भी हमने यहाँ पे देखा, राइटर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ओ, हमारे साथी तो हैं यहाँ पे राइटर. सर क्विकली, यू नो, टॉक टू अस अबाउट द फैक्ट कि आपने भूतों से कितनी बार ऐसा एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ सर कभी कुछ? इन भूतों से परिचय कराया मुझे करुण पुंज ने. करुण, वेयर आर यू? देयर. सो आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस concept of Panchak, right? And Karun introduced me to this world of Panchak. And when I started reading more and more about it, and when I found the reference in Gadur Puran, and if you read what is written there about what happens when death happens during Panchak, it's very scary, right? It's extremely scary. It unnerves you completely, right? And that's when we thought that there lies a brilliant gem of an idea, right? And it's rooted in our tradition, in our practice. हजारों सालों से लोग मानते आ रहे हैं. So much so it may not be, that may not be Panchak, but I'll tell you something. Bhishma Pitama, when he was lying on this bed of arrows, despite the fact that he had Ichha Mrityu as a boon, right? And he was lying there for 58 days. Right, bleeding, maybe God knows how much pain he must have been in trying to be like that, right? And he lay there like that. One of the reasons, and I read about it in the Mahabharata, there is a quote there which says that, you know, it's in our belief system, you know, we don't attain moksha, we don't get moksha if the time is not perfect, if the time is not right. And imagine this is all because of alignment of 5 nakshatras, right? And today is the last day of Panchak, by the way, for the month of August. So it's a very sort of, right now the time is good, so we've picked up a good muhurat so that you are all safe. Yeah, trust me. And when I looked up that today is the last day of Panchak, and I looked up the timings, the evil time is also kind of approaching. What's the time right now?
Yeah, so so it's going to be now knocking very soon, right? But we are all in good company, so I'm sure we'll be safe here. Uh, I have to mention, you know, it takes courage. Making films in India today independently is extremely tough. बहुत बहुत मुश्किल है पिक्चर बनाना, ऊपर से रिलीज करना. Now that has only been possible. He's not here today. He's doing something that will help us make more movies tomorrow. He's probably right now making more money. Yeah. So my friend, my partner, the producer Vinay Reddy, he's uh, he's he's right now attending an AGM because of which he could not attend. But it takes balls of steel to be able to, you know, to be able to back a project like this, to believe in a story. And he believed in the story, and he said, "I'm going ahead. We want to be doing this film." So that is what we have. We have Taruna, if she wants to represent Vinay. So Taruna is a director of our company. Uh, she's here. Thank you so much. And Vinay would be very happy to know that you all, and I think I'll tell him that you all love the trailer. Yeah, yeah. So thank you all. यार अभिनव ये तुम्हारा टाइम है यार. So give it up for this superb director, ladies and gentlemen, Abhinav Parikh के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. You know, before I talk to him, I have to talk about his film, जिसका कुछ दिन पहले हमने एक लॉन्च किया था, एक इवेंट किया था. वहां पे दिस मैवरिक डायरेक्टर जिनके साथ इन्होंने बड़ा क्लोजली काम किया है, अनुराग कश्यप साहब आए थे. एंड ही वाज टॉकिंग इतना हाईली अबाउट दिस जेंटलमैन कि मैं क्या बोलूं. एक बड़े कमाल की चीज उन्होंने बोली थी. इट सेड कि अभिनव ने उस बड़े पर्दे में जो जादू डाला है उससे एक चीज सिद्ध हो गई, एक चीज हैज बीन प्रूव्ड, एंड दैट इज कि बजट से कुछ नहीं होता. अगर आपकी विजन बड़ी है तो कोई भी फिल्म बड़े पर्दे पे बड़ी लगती है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन विद अ वेडिंग स्टोरी, सर. आई मीन इट. 30th August इज व्हेन वी विल गेट टू सी दिस मूवी. लेकिन सबसे पहले ये इतना बढ़िया कपल है सर, इतने अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग हैं, आपको ये नहीं लगा सिर्फ आउट एंड आउट लव स्टोरी बना देता हूं? सर क्या है ना, फिल्म मेकिंग मुझे लगता है जब तक कुछ ट्विस्ट ना हो ना तो मज़ा नहीं आता है. तो जो इतना प्यारा कपल है उसके साथ कुछ ट्विस्ट ना हो, टर्न ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना. ऑडियंस को लगना चाहिए, थोड़ा झटका लगना चाहिए, थोड़ा धक्का लगना चाहिए. सो या स्टोरी वैसी थी कि एक कपल किस तरह से इन सिचुएशंस में फंस के और फिर किस तरह से निकल सकता है. दैट इज़ आवर वेडिंग स्टोरी. बिकॉज या सो एक वेडिंग भी उसी तरह होती है. सो या ट्विस्ट एंड टर्न्स. Talk to us about this horror comedy का genre right now, the trend of horror comedies. तो उसमें लग रहा है कि एक serious comedy इसको वो क्यों मिल पाएगा? सी आई थिंक एक फिल्म होती है, उसकी जो स्टोरी होती है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और जॉनरा डिसाइड होता है. सो द स्टोरी इज सो पावरफुल. ठीक है, तो मुझे लगता है जॉनरा इसका बैकबोन है. हॉरर इज द बैकबोन, बट द थिंग, द स्टोरी इज सो पावरफुल. मुझे लगता है कि इंटेंस हॉरर हमेशा वर्क करता है अगर उसे अच्छे से बनाया जाए. शैतान इज द एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये कुछ उस तरह का है. और एक इंटेंस हॉरर का एक सर्टेन ऑडियंस है, और मुझे लगता है उन लोग ये फिल्म के लिए मतलब टूट पड़ेंगे. या Talking about this vision of yours and of course the backbone of this film, आपको क्या लगता है, what is that one thing that motivated you to do so well और इस बड़े पर्दे पे जो of course जो response अभी आपने दिया, what do you have to say? सो द स्टोरी कंप्लीटली, मतलब अगर एक फिल्म मेकर कोई भी फिल्म बनाने के लिए रेडी होता है तो उसके पीछे स्टोरी सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है. एंड व्हेन आई मेट शुभोदा फर्स्ट टाइम एंड ही टोल्ड मी, एज यू मेंशन कि हम पिछले इवेंट पे जब कुछ और कर रहे थे तो वो थोड़ा ड्रामा कॉमेडी था. सो वैसी चीज़ें आ रही थी बट मुझे करना नहीं था. सो व्हेन आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी कि दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन पंचक एंड दिस इज़ हॉरर और ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी नहीं पता था. देन आई टोल्ड हिम कि गिव मी 1-2 days का टाइम बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग. मैंने जब पूरा पढ़ा देन आई वाज लाइक कि ये जो चीज़ है पंचक, ये इतना ज़्यादा टॉक अबाउट थिंग है. मतलब गूगल खोल के मैंने देखा
So there are articles on Google जो कि filled up है Google इससे 5 of a family died mysteriously. So I was like the topic is very universal, so why not? And story is so powerful, screenplay was so powerful. तो फिर उसके बाद cast मतलब these actors are actually handpicked. Lakshveer, Akshay sir, Vaibhav, Mukti, and whoever, Monica, like whoever is part of the film. अगर आप देखोगे कि एक सीन में भी किसी ने परफॉर्म किया है ना तो ब्रिलियंट है, मतलब आप भूल नहीं पाओगे उसे. द क्रेमेटोरियम अटेंडेंट वाज देयर फॉर 3 सीन्स, बट आप भूल नहीं सकते उसका चेहरा जब आप फिल्म देखते हो उसके बाद में. एंड एज दादा मेंशन कि इतनी बढ़िया टीम थी, तो एक फिल्म के पीछे का बैकबोन होता है उसकी टीम. डायरेक्टर तो सिर्फ ऐसे ही साथ साथ चल रहा होता है, बट सबने अपना आई थिंक 200% दिया. लाइक सुप्रतिम और मैं जितने भी नाम लूँ वो कम हैं, सबने अपना 200% दिया. 30 days इन देहरादून, आई थिंक द मोस्ट फन 30 days. तो वही बैकबोन था एक फैमिली की तरह फिल्म बनाना. थैंक यू सो मच. डायरेक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां, ऑफ कोर्स फॉर हिज विजन. शुभदा प्लीज यहाँ आइए, आप कहाँ सेंटर स्टेज छोड़ के चले गए. ऑफ कोर्स अप्रतिम काम किया है सुप्रतिम दादा ने, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. द डीओपी दादा एदिके ऐशो ना, ऐसा कैसे? वी वांट यू हियर. ऑफ कोर्स एक एक फ्रेम जो हमने यहाँ पे देखा, दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड एज शुभदा ऑल्सो सेड, वो जंप खाली डराने की कोशिश नहीं की गई है, आपको बांध के रखती है कहानी, और उसके बाद जब वो कुछ एक मोमेंट्स आते हैं तो आपकी लिटरली वाट लग जाती है. आई डिडंट फाइंड एनी गुड वर्ड. दादा प्लीज. सो व्हाट डू यू हैव टू से? यहाँ ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार और इतना स्माइल्स जो चेहरे में दिख रही हैं. ऑफ कोर्स दादा इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग सिनेमाटोग्राफर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट. कमाल है, कमाल है. प्लीज बताइए थोड़ा सा इस टीम के बारे में, और वो कौन कौन से ऐसे फ्रेम्स थे जो आपने शूट किए लेकिन हमें देखने को नहीं मिले. जरा अंदर की बातें बताइए इन लोगों के बारे में. So actually, I feel very. I have a lot of gratitude for Shubhoda and Avinav because, very honestly, मैं जब सुना था हॉरर फिल्म है, मैंने ना कर दिया था, नहीं करना है करके, because I don't like watching horror films, and that's what Avinav told me, that's the reason why we thought that, you know, Supratim, you should come on board, because I think you will make it some difference to the film. And I guess it's up to the audience now who will feel that how different it is, and in terms of a film, in terms of other horror films that we get to watch, and what is the difference with a wedding story. So yeah, that way I think Avinav, Shobhoda, and we all as a team have come up really well. As Avinav was saying, 30 days we had a lot of, night shifts, day shifts, and it was chilling cold. And I know cold is good in mountains, but when you're working, it's not. So you realize those chilling nights, how difficult it is to work throughout the night. But yeah, at the end of the day, it's a film doesn't lie with us right now. It will get released and it will lie with the audience. And I'm sure that everybody who has performed here, they have given their best. Beat anyone. I can't. It's like everybody sitting out here, Monica se leke Mukti and everyone. So I believe it is a team performance which is there on the screen, and I believe people are going to love it. That's all. Thank you. Thank you so much, sir. This is the first team. बड़ी ऑर्गेनिक सी टीम है. मुक्ति, आई मस्ट टेल यू कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपना करके कि ठीक है यार तुम लोग कर लो अपना. सर यू हैव टू टेक द सेंटर स्टेज, ऐसे नहीं खड़े हो सकते आप लोग वहां पे. ओके, इट्स टाइम टू इनवाइट ऑन स्टेज और दिस एरिया द हैंड पिक्ड कास्ट, एंड वील स्टार्ट विद समवन जिनको हमने ऑफ कोर्स मराठी सिनेमा में देखा है, मराठी थिएटर में उन्होंने किल किया है. बाजीराव मस्तानी में वो सीन सर आज तक वायरल हो रखा है जहां पे आपके ऊपर खंजर चल रहे हैं. एंड उसके अलावा अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स हमने इनकी कमाल की परफॉर्मेंस देखी आर्टिकल 370 में. गिव इट अप फॉर वैभव Tatwavadi, ladies and gentlemen, a brilliant and a promising actor. Along with him, I'd like to invite someone who's always happy-go-lucky. वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, फिर चाहे वो एक्ट कर रही हो या डांस कर रही हो या जो भी परफॉर्मेंस दे रही हो. Give it up for Mukti Mohan, ladies and gentlemen. Please put your hands together for her. अब इस कास्ट का एक ऐसा हिस्सा जिनके लिए इतना ही कहूंगा, उनको सब बोलते हैं.
आपको देख के बचपन से बड़े हुए हैं, मैं नहीं बोलने वाला हूं. He's as fit as ever, as happening and as smart as ever. Give it up for Akshay Anand, ladies and gentlemen. Welcome, sir. So good to see you. Of course, अपने आप में एक्टिंग की मतलब एक क्लास है, ये चलती फिरती मास्टर क्लास है. So thank you so much for being here and being a part of this film. And फिर वो जिन्होंने ये सारा कलेश शुरू किया है, जिनके चक्कर में सारी पंगेबाजी हो रही है, लक्ष्यवीर सिंह सरन, लेडीज एंड जेंटलमैन. डिजिटल डोमेन में ऑलरेडी किल कर रहे हैं, फिल्मों की बात करें या जहां कहीं भी, कमाल की फैन फॉलोइंग. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, द गॉर्जियस लेडी हु सिटिंग ओवर हियर. अभी कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉकबस्टर में इनको देखा है. उसके अलावा अगेन डिजिटल डोमेन से लेके, जैसे मैंने कहा ना शुभोदा, मैं बोल रहा था हैंडपिक टीम है ये बिल्कुल आपकी. मोनिका चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हर. वेलकम वेलकम वेलकम. हमारी टीम के बड़े सारे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे. वील हैव अ फाइनल फोटो अप विद द टीम, बट वील स्टार्ट विद वैभव. वैभव क्विकली, दादा आप इधर आओ. हाँ जी, वैभव, टॉक टू अस अबाउट दिस टीम एंड दिस बॉन्ड, बिकॉज जैसा आप कह रहे हो स्क्रीन पे तो हम डर गए, लेकिन दादा ने यहां बताया वी हैड अ लॉट ऑफ फन. तो टॉक टू अस अबाउट दिस टीम एंड ऑफ कोर्स द एंटायर एक्सपीरियंस. हेलो. First of all, the experience was really great. जैसे अभिनव सर ने कहा कि we were shooting for 30-35 days in देहरादून, and वो शहर से भी मोहब्बत हो गई, and the lovely cast and crew. It was like a family, and when I say that it was like a family, I genuinely mean it. और बाकी सब ने तो बहुत बताया कि एक्सपीरियंस कैसा था. It's exactly like I second that thought. मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब जॉनरा आता है तो मेरा रुझान ज़्यादा हमेशा रोमांटिक या फिर ड्रामा की ओर रहता था रादर दैन हॉरर. तो जब पहली दफ़ा मैं मिलने आया था शुभदा से, एंड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, ऑनेस्टली आई वाज लाइक एज एन ऑडियंस, मेरे लिए क्या है इसमें, लाइक विल आई गो. बट ऑनेस्टली दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल जो जिनका हॉरर जॉनरा इज़ नॉट द फेवरेट जॉनरा, बट दिस फिल्म इज़, आई फील इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस, ड्रामा, एंड एट द बैकड्रॉप उसका है पंचक. सो आई फील जिनका रुझान हॉरर मूवीज़ की ओर नहीं है, वो वेडिंग स्टोरी देख के ज़रूर एंजॉय करेंगे, बिकॉज देयर इज़ अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल फैमिली, एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर इन्वॉल्व. सो डेफिनेटली प्लीज़ कम एट द थिएटर्स, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लाइक द मूवी ऑन 30th of August. Thank you. मैं पिकी चूजी क्यों लग रही हूँ आपको? Okay. So I'll honestly tell you, this is my debut. I think एक कलाकार को बनने में, एक परफॉर्मर को बनने में जितना टाइम लगे ना, वो बहुत अच्छा है. The first day, I remember the call that I received from Abhinav sir. And he actually saw my performance during the editing of Thar, and he was like, she's not just a dancer, she can act also. And wherever I used to go, I used to say that मैं acting भी करती हूँ, please मैं audition देना चाहती हूँ. I used to tell every director, like all the directors that I look up to, and whatever opportunities that you get, I'm so grateful that he saw something, and that is the reason I'm standing here today. And Shubhoda, I don't know what to say. He is one-man army. He knows the music. He knows the characters. He knows what and how he wants things to unfold in front of the audience. And I think when people walk with like a very, very clear thought, and they are certain about how they want the movie to be and the story to be, I was like, I'll do anything. You just tell me when to come on set and I'm going to be ready. You want me to jump from somewhere, you want me to cry, you want me to be cheerful. And I surrendered to this process only because of Abhinav sir and Shubhoda. And no matter what you do, I don't think actors can say that, that we are running the show, or we are the hero, or we are the heroine. It takes a lot for the entire team to frame you, to light you, for the co-actors to give you that emotion. And I think this is a dream team that we all have worked like a family, been like a family, and we really chill together and really felt the drama of the wedding. And
I'm really, really grateful right now, and I'm so excited to see the entire film and everyone's reaction. एब्सोल्युटली, Thank you. हमारे साथ भी यही है. कुछ आवाजें आ रही थी, लक्ष्य भी ऊपर ही देख रहे थे क्या होने वाला है. मत बोलो, डोंट से दैट. सर ने जैसे ही बोला 3 लोग उठ के डर के मारे चले गए, है ना. सर ने अनाउंस ही किया था. अक्षय सर, दिस वंस फॉर यू. जैसा मैंने कहा, इतने सालों से यू बिन देयर इन द इंडस्ट्री, और जितना प्यार शायद पहले दिन मिला था आज भी उतना ही मिलता है. यू लिटरली लाइट अप द स्क्रीन, वी सी यू एंड वी आर लाइक, अरे हम तो इन्हें जानते हैं, है ना. ये जो कास्ट है या जितना भी अभी हमने देखा, व्हाटएवर वी हैव सीन इन दिस प्रीव्यू, उसको देख के भी लग रहा है कि हाँ यार ये बड़े रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं. वाज दैट द रीजन टू से यस टू दिस मूवी, या क्या था? Actually, the reason for saying yes to this movie was that when I was called by Abhinav to the office to get a narration for the idea in the film, when I landed up over there, I met Shubho sir for the first time. Right. And when he was narrating this whole idea to me, I did not believe it. मेरा पहला reaction ये था, ऐसा नहीं होता है यार. But I do have a very, very close astrologer friend of mine. And I would like to mention this, that stars and astrology does make a big difference in our lives. The position of the stars at the time you're born will determine your destiny. And I'd like to say that with all authority, because I've experienced it. So when Shubha, related the whole thing to me, I went to my astrologer friend and I called him up. His name is Vimal, and I said, Vimal, भाई ऐसा मैंने सुना यार पंचक में. हाँ होता है यार, वो पुतलियाँ बनानी पड़ती हैं 5 और उनमें जान डालनी पड़ती है, और जब तक उनको जलाया नहीं जाता है पूरे खानदान के लोग, कम से कम 5 लोग मर जाते हैं. I got very interested by that whole thing, very intrigued. And I immediately called up Abhinav sir and I told him, I said, I am doing this film hands down and I want to be part of this film for whatever reasons. And one of the main reasons is this, that I want to be part of showing the audience what it is to experience something like Panchak in your lives. And I think that it's been a great endeavor of the direction team, the writing team, the actors and everybody. We put in 100% to bring to the audience and show them what exactly can happen with a certain kind of situation in your life when something like this happens, how you could react or what could happen to you. You could either destroy yourself or you could come out of it. The culprit, of course, being Lakshveer. Without him, I don't think this movie would have been possible. He's basically the Sutradhar. And he's all the actors, I mean, including him and all of us, we put in 100% and we're expecting that the audience will like the film. Sure, sir. We are sure. And we saw the kind of response that we got. See, Yes, तालियां yes, पड़ yes, रही हैं, yes, sir, yes, of course. yes. 30th is when we'll get to see the movie. Monica, this one's for you. अगला सवाल सीधे आपके ऊपर दाग रहा हूं मैं. मुझे बोलें, when you are a part of this Bollywood masala entertainer, with this huge star cast, you're there. Then you are a part of this digital show जहाँ पे आप already kill कर रहे होते हो. And then when you come to something as organic as this, as he said, independent producer है, वो सबको साथ लेके आया है, hand-picked cast है, and experience देखो आप यहाँ पे, तो कितना difference आ जाता है? How was it for you? कोई डिफरेंस नहीं आता. वहाँ पे किल किया, यहाँ पे भी किल कर दिया. ओए, this is the confidence that we are talking about. Lovely. No, very honestly, ये फिल्म जब मैं साइन करने गई थी, जब मैं पहली बार शुभोदा से और अभिनव सर से मिलने गई थी, मैं देख के इनसे मिलके ही मुझे लगा था यार ये तो मज़ेदार होने वाला है, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है. ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे भी नहीं पता था पंचक होता क्या है. फिर इन्होंने बोला, मैंने बोला कि सच में होता है क्या सर, मतलब क्या मैं तो हॉरर बहुत देखती हूँ, रोज़ रात को देख के सोती हूँ. आई वाज लाइक इज इट स्कैरी, इज इट नॉट स्कैरी, व्हाट्स गोइंग टू हैपन. तो उन्होंने बोला आप गूगल करो अभी इसी वक्त, और मैंने उसी वक्त गूगल खोला है और मैं बहुत डर गई. बिकॉज if you Google right now what happens if somebody dies in Panchak, you will find numerous articles where people say कि 5 लोग family के मर गए if you don't do that. So that got me convinced and that got me also interested, क्योंकि ऐसा पहले कभी कुछ बना नहीं है. And that's why I'm a part of this film. And shooting it was a wonderful, wonderful experience. Blockbuster cast के बाद एक बहुत talented team of actors के साथ मैं काम कर रही हूँ. So it's amazing and let's see, fingers crossed. Absolutely. Thank you so much. और जो भी ऊपर है, please हमें complete कर लेने देना.
then we'll come to you, maybe. No, I'm not coming anywhere. Laksh, this one's for you. Please quickly tell us, as we are saying you're the main culprit, it has all happened because of you. When you were told about this thing, he's like, nahi, nahi, It's nahi. the stars. It's the stars. It's the stars. Everybody shared their experience. आप बताओ, आपके लिए कैसे था शुरुआत? How did it happen for you? Sir, मेरे लिए तो I mean यहाँ तो everyone has done a lot of work and I'm just beginning. And मेरे लिए I think this was one of the first projects where the director and producers called me in the office, met me and said, we want you to do it. मतलब मैं तो अभी तक auditions दे के मेरे को काम मिल रहा था, तो अभी पहली बार हुआ किसी ने बोला कि बस हम चाहते तुम करो. I think that is very there's a lot of respect in that and that's very self-assuring. So I was very happy and grateful. और मैं तो हाँ ही बोलना था. sure. पहली बार कोई बोल रहा है कुछ कर लो सीधा, तुम मना क्यों करोगे? और वो भी इस level का. हाँ, and it's turned out really well because of course I think the kudos to the whole team. I think everyone's done a very very good job and I feel that it'll speak for itself rather than me saying anything. Absolutely. Fingers crossed. और बाकी तो हमने देख ही लिया. एक चीज ऐड करूंगा. So अभी आपने सबको सुना और आपने पूछा कास्ट के बारे में, handpicked why. So actually फिल्म में और इनके बेसिक नेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. So everyone is like, Vaibhav is like an anchor, Mukti is very happy chuppy, Neha जो मोनिका ने play किया है, he is very logical. So that is the reason, and Akshay sir again like a father figure. तो वो एकदम fit बैठा है cast. That's why we handpicked. I am sure. और वो relatability जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो दिख रही है यहाँ पे. Quickly, Akshay sir, if you have to talk about this director साहब यहाँ पे, मैं organic होने की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे. Talk to us about this team, especially the producer and the director. ये बहुत अलग है. Have you worked with people like them इससे पहले? Because simplicity की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ मैं वो dedication, that passion. Talk to us about that. Shubodha, आप please यहाँ खड़े हो जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी. So I'd like to say that I began my career. I began my career with a person called Dev Saab Devanand. Absolutely. So when I was taken into the industry, I already was working with people of that standard, and then I was mentored by Mahesh Bhatt. Bhatt Saab has been a big mentor to me. And when you work with people like that, you set a standard of people that you're going to work with in the future. Yes. So anybody below those standards is somebody that you say no to. I mean, I'm sorry to say that, but you want to be a part of any endeavor, any project because of the kind of people that you're going to be working with. Yeah. So when I met Shubodha for the first time in the office and I met Abhinav, I knew that I was going to be submitting myself and my career and this role to people who are going to be, projecting me in the best possible way. Absolutely. And the way that I would like to be projected. So I give it all to Shubha sir and to Abhinav because of the way they brought the project together, the kind of concept that they believed in. Yes. You see, when you say that, certain films are based on reality or certain films are based on real facts, this is one film that is based on real facts. See, when you say that a film is based on a real fact, it doesn't have to be a real story. It can be a real concept. It can be real, something to do with reality in life, something to do with a concept like Panchak. And then how do you carry that out? How do you make a story that revolves around that and creates that kind of impact with the audience that makes you feel, wow, I mean, this whole subject or this concept has been, attempted with in the best possible way. And that's what I'd like to say about Shubodha and Abhinav, and even Shubhodam, sir. I mean, because, visuals are very important. Obviously, the concept of film is audio and visual, absolutely, right? Yeah. So when you're watching audio, along with the content that's being provided to the audience, and then you're watching it through a visual, I mean, the impact has to be 100%. And if two people are, narrating a concept to you and telling you that this is the concept and this is how it's going to be visualized, this is how it's going to look, then you know that you're in best hands. So I'd like to say that I was very privileged to, and I was honored when they called me in and said that we want you to do the film. And I don't think we ever had any, discussion after that. It was just readings that we had in the office. And then I met the cast, and then I loved everybody. We just took to each other, and then, it was like we went over there, and then, शादी का जब माहौल होता है, अगर आप उसको acting भी कर रहे होते हैं, तो एक शादी का माहौल जो है वो subconsciously आपके, as an actor, it just goes into your system. So we were actually, having a great wedding over there in Dehradun with the cast, while we were shooting, while we were not shooting, we were just kind of, having fun. And when we were on the sets doing serious scenes, we were actually doing serious scenes because we're getting into the characters. So it was a great experience, and I would, hands down,
if they call me for work, I mean, Shubha sir and Abhinav, anytime, I'm hands down with them. Lovely. Any day, I'll submit myself to them. Give it up And for ma'am this also, team, of for course. the music also, I'd like to mention the music is amazing. And the music in this film is so wonderfully, gelled with the whole concept that it needs some sort of recognition. And I'd like to call ma'am ahead and please, Give it up for her, ladies and gentlemen. I have taken the privilege to do that. I mean, I'm sorry, but I really want to mention about the music because it really, the songs really haunt me and I really love the music so much. Yeah. Karan sir, please. Ma'am, talking about music, अभी तक सर ने शादी की भी बात की, वो मुझे अभी दिखी नहीं है कहीं. We've only seen the serious stuff. So talk to us about the entire musical journey of this film, if you have to. इनफैक्ट मैं बताऊंगी कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक पार्ट जो है राही, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ इन कश्मीर. राही, मी एंड करण विथ शुभोस इंस्ट्रक्शन, ये वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता था, हम लोगों ने किया है. एवरी टाइम कुछ बनाया नहीं हुआ, ये वर्क ऑन इट, इस फिर से करो. तो इस तरह से था और सारा ब्रीफिंग हमें जो मिला उस हिसाब से हमने कोशिश की कि इसके म्यूज़िक करें हम लोग. आशा करती हूँ कि सबको अच्छा लगेगा. एंड करण प्लीज़. इतना स्वीटली उन्होंने कुछ बोल दिया, आगे कोई बोल सकता है क्या? Yep, exactly that. No, Karan, you have to add something. No. So basically, the music is very unique because we had to. Well, once you see the film, you will understand why it had to be perfect for this film because the acting is incredible. So we had to keep it at that level. So you all should just see it. Was it a challenge? Was it a challenge? It Because this is not definitely- a regular masala entertainer, Exactly. That's the reason why. It is actually a big challenge because it's a horror film, but it has emotions in it. It has a lot of, there's family stuff going on, there's everything. So we have to cater to all the emotions, right? And keep the undertone of Panchak horror going on. So yeah, it's challenging, but it was fun. I'm sure it was fun. We'll get to see it in theaters, ladies and gentlemen. Abhi, quickly what we'll do is if we have some questions, shoot photo. Pehle kar le. Let's have a quick picture with this team here. Yes, please, Shubhoda. Nahi, main kar raha hu. Karan, please. Can we all? Thank you so much. Okay, so we'll quickly take some questions. Taruna ma'am, please आइए, of course. मैंने कहा मैं अलग से बुलाऊंगा, डांट ना पड़ जाए. She's like बोला था नहीं बुलाने का. Thank you so much. जी आइए. Now we'll do our questions. हाय, इधर. अमजद सर आता हूँ, यहाँ सवाल आ गया. आज पूछ लीजिए, चलिए. You ask. ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, सारी टीम को बधाई हो मेरी तरफ से. अभिनव सर, आपसे मेरा सवाल था कि आपने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, उसको प्रेजेंट भी अच्छे से किया है. तो इसको फिल्म बनाते टाइम अपने धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं उन सब चीज़ों का कितना ख्याल रखा है? बहुत ख्याल रखा है. आपने पंडित जी का गुस्सा नहीं देखा ट्रेलर में, तो सबसे ज़्यादा ख्याल उसी चीज़ का रखा है. और जब आप फिल्म देखेंगे तो किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हमने हर्ट नहीं किया है. इट इज़ जस्ट दैट ये एक मृत्यु के टाइम पे एक होती है जो प्रक्रिया वो करनी होती है, और अगर वो नहीं करो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिल्म उसी बारे में है. बाकी हमने किसी भी तरह की चीज़ों से धार्मिक कोई भी सेंटिमेंट को छेड़ने की कोई कोशिश नहीं करी है. So आइडिया वॉज कि जब
कंटेंट में दम हो तो उसे दिखा देना चाहिए. तो दैट इज द ओनली आइडिया एंड वी वर कॉन्फिडेंट इनफ और रिएक्शन देख ही लिया. सो दैट्स द आइडिया. छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं कि हाँ ट्रेलर में हम बचा के रखेंगे फिर फिल्म में दिखाएंगे, ये रिवील करेंगे वो रिवील करेंगे. सो आइडिया वही था कि कॉन्फिडेंस है, कंटेंट में दम है, दिखाते हैं, रिएक्शन लेते हैं. और रिएक्शन इतना अच्छा था. थैंक यू आप सभी लोगों को. आपको अच्छा ही लगा. मैं इधर खड़ा होके इसीलिए देख रहा था, वहाँ नहीं बैठा. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ऑडियंस को भी इसी तरह से पसंद आएगी. बिकॉज जैसा वैभव ने भी बोला कि इट हैज़ एवरीथिंग, लाइक सेलिब्रेशन, इमोशन, ड्रामा एंड ऑब्वियसली हॉरर. सो आई होप कि सारे लोगों को, एवरी काइंड ऑफ ऑडियंस विल लव दिस. So वैसा कुछ फील हुआ नहीं. सो व्हेन आई केम ऑन बोर्ड ऑन द प्रोजेक्ट तो मेरी शुभदा से ना बहुत डिस्कशन होती थी इन चीज़ों को लेके कि ये होती है चीज़ें या नहीं होती है. तो वन डे ही सेड कि यार हम हॉरर बनाने जा रहे हैं, यू हैव टू कम्प्लीटली सरेंडर टू द जॉनरा. अब वो अगर होता है या नहीं होता है, बिकॉज आई एम वेरी रैशनल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फील नहीं किया तो शायद नहीं होता. बट ही सेड कि होता है या नहीं होता है वो डिस्कशन में हम घुसने नहीं है, हमें एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना है. मैंने कहा ठीक है. सो क्रेमेटोरियम के सीन्स आपने देखे. सो वी आर शूटिंग इन रियल क्रेमेटोरियम फॉर 2 days. तो देहरादून में रियल क्रेमेटोरियम में हम शूट कर रहे थे. और जो इलेक्ट्रिकल वाला है वो वर्किंग नहीं था. बाहर जो नॉर्मल था वो वर्किंग था. ऑन डेली बेसिस वो 2 दिन हमने 15 से 16 डेड बॉडीज जलती हुई देखी है. और हम लोग अंदर शूट कर रहे हैं, द गैसेज एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द बॉडीज बर्निंग. तो वो सब चल रहा था. एंड क्रीमेटोरियम अटेंडेंट जो था वहाँ पे वो हमेशा हाई रहता था बिकॉज सर्टेन एनवायरनमेंट वैसा था. सो फर्स्ट डे आई हग्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा करना है ये वो. तो वो चलो फर्स्ट डे हो गया. सेकेंड डे जब हम लास्ट सीन शूट कर रहे थे वैभव का, वैभव वॉज वॉकिंग थ्रू पायर्स, तो मैं खड़ा था आगे, शुभदा मेरे पीछे खड़े थे और वो क्रेमेटोरियम अटेंडेंट एक कॉर्नर में था. एंड ही सेड कि नहीं नहीं ये लोग अच्छे हैं यार, ऐसे नहीं, नहीं नहीं सब बढ़िया है, हाँ वो ग्रीन जैकेट वाला बहुत बढ़िया है. एंड शुभदा ने पीछे देखा, ही वॉज टॉकिंग टू समवन बट वहाँ कोई था नहीं. एंड ग्रीन जैकेट मैंने पहना हुआ था और मेरा डीए इनके साथ खड़ा था. सो हमने पैकअप किया. उसके बाद में हम वहाँ से निकले तो मेरा जो डीए था उसको पसीने आ रहे थे 2 डिग्री में. एंड कार में उसने मुझे बताया. एंड एक और अमेजिंग बात है, जब हम क्रेमेटोरियम शूट कर रहे थे तभी मेरी वाइफ वहाँ आई थी मुझसे मिलने. तो जब कार में उसने मुझे बताया तो मैंने उसे मना किया. मैंने कहा मेघना को बिल्कुल मत बताना ये सब हुआ है. सो या दैट वाज द इंसिडेंट. लाइक आई वाज आल्सो स्पूक्ड बट मैंने कहा ठीक है. और वो इतने प्रोसेस में थे हम, क्योंकि शूट हमें डेडलाइन में ख़त्म करना था. बट या क्रेमेटोरियम में ये हुआ था. Hello, my question is for Abhinav from here. I want to know, especially when you said that you have not heard this concept before. So, what was the inspiration behind it? How did you thought of doing it on screen, and what was the envision that? How did you think that this concept can be there on the big screen? How did you think about it? So, एक डायरेक्टर को ना एग्जीक्यूशन करना होता है और उसके लिए स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट जब बहुत अच्छा हो तो बहुत इजी हो जाता है. तो मेरे लिए ना स्टार्टिंग से चीज़ें इजी थी. शुभदा ने कॉन्सेप्ट और स्क्रीन प्ले जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो कर ही दिया था. तो मुझे तो जब मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा यार करते हैं, चलो एग्जीक्यूट ही तो करना है. फिर जब कास्ट आई तो इतनी स्टेलर कास्ट हो, इतने मतलब कमाल के एक्टर्स हो आपके पास, तो वो पार्ट भी मेरे लिए ईजी हो गया. तो मेरे लिए तो थ्रू आउट ये जर्नी बहुत ईजी रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट वन डे ऑफ क्रेमेटोरियम. बाकी अमेजिंग था बिकॉज मैं मतलब राइटिंग की
फिल्म की राइटिंग की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, तो वो उन चीज़ों ने मेरे लिए बहुत इजी कर दिया। विजुअल्स के लिए सुप्रतिम थे ही, तो मेरे लिए बहुत इजी पीजी थी सब चीज़ें। लाइक वैभव, सबने देख ही लिया है कि वैभव किस लेवल का परफॉर्म करते हैं। मुक्ति, एंड आई एम टेलिंग यू, मुक्ति ने बोला डेब्यू है, बट ऐसा कमाल का डेब्यू आपने देखा नहीं होगा। शी इज़ अमेजिंग। एंड मोनिका, मतलब मोनिका को तो मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बट एक चीज़ बोलूँगा, मोनिका ने सबसे ज़्यादा फिजिकली अगर किसी ने दुख झेला है इस फिल्म में तो मोनिका है। इसको हमने लटकाया भी है, और 2 डिग्री में इसको कम से कम चिल्ड पानी में हमने 6 से 7 बार डुबाया है, सो सुबह 4 बजे। एंड शी वॉज हैंड्स डाउन, लाइक शी वॉज लाइक कि एक बार फिर करना है, ठीक है, एक बार फिर करना है, ठीक है। सो एवरीवन यू नो वॉज सो गुड एंड सो सपोर्टिव। तो मेरे लिए वो एकदम ईजी था हर चीज़। लाइक लक्ष्यवीर, वो जो आपने देखा, लाइक वी हैड अ डिस्कशन वंस ओनली कि ऑडियंस को ये कहीं कम अक्रॉस वैसा ना हो कि मैं किसी चीज़ का किसी चीज़ को डाउनग्रेड कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मतलब एवरीवन वाज लाइक अमेजिंग, एंड उन्होंने 100% दिया, तो मेरे लिए सब कुछ बहुत इजी था। एक्चुअली ये आंसर का जवाब ना शुभोदा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम लोग टाइटल पे बहुत डिस्कशन कर रहे थे। सो वेडिंग बैकबोन है फिल्म का, एंड डिस्कशन करते करते एक दिन ना मेरे मुंह से यूं ही निकला, देन ही वाज लाइक यार ये तो बहुत बढ़िया है। एंड फिर ये टाइटल हमको मिल नहीं रहा था, कितनी डिफिकल्टी आए, वो सारी चीज़ें आपको शुभोदा एक्चुअली ज़्यादा बेटर बता पाएंगे टाइटल को लेकर। इफ यू आस्क मी कोई साइंस था इसके पीछे तो नहीं था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा लगा टाइटल, अ वेडिंग स्टोरी। बात कर रहे थे, अभिनव ने बोला वेडिंग स्टोरी, कमाल है यार, शादी में बर्बादी बढ़िया लगता है, ठीक है। आई बिलीव इन शादी, बट यू नो तो कोई साइंस नहीं था। यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू टेक इंट्यूटिव कॉल्स। इट वाज जस्ट एन इंट्यूटिव कॉल। एट द मोमेंट इट साउंडेड नाइस, गुड, लेट्स गो एंड डू इट, राइट। एंड देन एज वी काइंड ऑफ स्टार्टेड रोलिंग ऑन, अच्छा ही लगने लगा। मतलब एक इंट्रीग तो था कि आप कह रहे हो वेडिंग स्टोरी लेकिन है हॉरर, तो वो जो इंट्रीग था ना, दैट वाज आल्सो वर्किंग फॉर अस, एंड दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो ऑल अराउंड, लाइक यू आस्क्ड। सो मेनी हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो ट्रेलर दिखाते हैं इसीलिए तो टीजर है, ट्रेलर है, पोस्टर है, मतलब भूत भूत निकल रहे हैं पोस्टर में तो Okay, so my question to Abhinay sir. लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मैं इतना बात ही नहीं करता हूँ इसीलिए चांस दिया है। थैंक यू। सर मुझे पूछना था, लाइक आपका मूवी ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा हमें, तो आपने इस मूवी में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है और हॉरर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस कैसे किया, और कौन सी डिफिकल्टीज आई आपको? सी अगेन, डिफिकल्टी कोई नहीं आई, बट जो आपका पहला पार्ट है सवाल का कि कल्चर और हॉरर को कैसे वो किया, सो अभी शुभदा ने एक कहानी आपको सुनाई थी भीष्म पितामह के बारे में। तो अगर आप कल्चरली देखेंगे तो जो भी कहानियाँ आप सुनेंगे वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डेथ, नक्षत्र और वो सारी चीज़ें जब मिला जुला के आती है तो एक्चुअली उससे आप हॉरर क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। टाइम इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, नक्षत्र आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो अगर आपके अगेंस्ट काम करने लगे तो हाउ कुड यू स्टॉप इट। सो वो बैलेंस मुझे अपने आप मिल गया कि ये किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। सो स्टोरी में, स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें शुभदा ने बहुत अच्छे से पिरो रखी थी। I just want to, like, I just have to execute those things really well. कुछ चीज़ों पे हमारा डिस्कशन होता था, लाइक द क्रिमेटोरियम सीन, कि यार इसको बैलेंस रखना है थोड़ा, किसी की किसी के सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए। तो वी एक्चुअली केप्ट इट लाइक दैट कि हम किसी को किसी भी तरह से हानि, मतलब किसी के भी सेंटिमेंट्स को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे बस। बट ये चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है, अगर ये बियॉन्ड कंट्रोल चली जाएगी तो ऐसा होता है। दैट वाज द आइडिया। हेलो, आई एम प्रशांत फ्रॉम NDTV। मेरा सवाल डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब दोनों से है। सवाल ये है कि जो जॉनर है ये हॉरर, एक टाइम पे कुछ लोग थे जो
इस पे फिल्में बनाते थे, रामसर ब्रदर्स की बात करें, बाकरी, मोहन बाकरी की बात करें, उसके बाद अभी हॉरर कॉमेडी शुरू हुआ है. सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है एक स्पेस हॉरर फिल्म्स का बाकी है जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं और उसमें एक ऑडियंस जो है वो देखने के लिए तैयार है और बिजनेस अच्छा हो सकता है हॉरर फिल्म्स का? मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, शैतान ने बहुत सारा बिजनेस किया है, सो वो प्रॉब्लम नहीं है. फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी है, आपकी फिल्म चलेगी. नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पेस है अभी हॉरर फिल्म्स का जो बहुत सारे लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं. सो ये एक वजह आप लोगों ने भी इसीलिए ट्राई किया कि शायद एक सेफ गेम हो सकता है. नहीं, शैतान में ट्राई किया है एंड हमने इसलिए ट्राई किया. मैंने तो ये फिल्म इसलिए की है क्योंकि कंटेंट बहुत सुपर्ब था एंड आई बिलीव कि कंटेंट अच्छा होगा तो अपने आप चीज़ें ऑडियंस तक पहुंच जाएगी. कंटेंट इतना रिलेटेबल है कि आई टेल यू कि जब हमने ऑन बोर्ड लेना शुरू किया लोगों को फिल्म पे, तो जैसे ही हम स्टोरी बताते थे पंचक के बारे में, या तो उस टाइम पता होता था, नहीं तो वापस वो बंदा आके बोलता था कि अरे हाँ मैंने ऐसा सुना. सो इट्स सो रिलेटेबल, इट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया. तो वो कमाल करेगी कंटेंट वाइज. तो दैट इज माय आंसर. बाकी बिजनेस शुभदा बात करेंगे. प्रशांत सर. जी जी. डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने एक्साइटेड होते हैं हॉरर जॉनर को लेके? और पहला सवाल तो है ही, दोनों सवाल का जवाब बता दें. यस, तो ऐसा है हॉरर ना, मतलब आई वुड से शुरू में हॉरर वाज वेरी वेरी नैरो सॉर्ट ऑफ जॉनर, जिसमें भूत निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, ठीक है, पीछे से कोई आता है, भौ करता है, तो वो साउंड लेकिन आज तक किसी ने यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया. वो बचपन से हम लोगों को डराया गया किस साउंड से? भौ. यही था ना. तो दिस साउंड वी हैव यूज्ड इन द फिल्म, राइट, एज आवर साउंड ऑफ द फिल्म. दिस इज आवर सिग्नेचर साउंड ऑफ द फिल्म. सो इट वाज अ वेरी नैरो जॉनर आई वुड से, जहाँ पे मांस गल रहे हैं, पिघल रहे हैं, वो वाले भूत पिशाच ये सब निकलते थे. बट इफ यू लुक एट द वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो, हॉरर के जॉनर आजकल वाइडन होते जा रहे हैं, राइट. साइकोलॉजिकल हॉरर भी है, right. So there are all kinds of horror that are getting accepted by the people, and I think the young are also wo jump scare na typically. I think, see, I am no one to comment on what works or what does not work. I don't think I know anything, right. But wo jump scare wala horror ka zamana shayad धीरे धीरे खत्म हो रहा है. We're getting into more immersive genre, immersive horror. मतलब जो एनवायरनमेंट, जो यूनिवर्स ऑफ हॉरर है वो भयानक होनी चाहिए, राइट. यू आर गेटिंग इनटू अ स्पेस व्हिच इज वेरी स्कैरी. दे मे नॉट हैव 3 ghosts coming out of nowhere and scaring you, but the universe has to be very very eerie, very scary, very unsettling. So I would say the way that we have worked, ये एक unsettling सा space है. Also I think हमने जो कोशिश किया है, we tried, is that to create a universe where it's the horror of unknown. सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ का लगता है जब हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं. So we are playing with the horror of unknown. It's the mystery of unknown. We don't know what is chasing, but something is chasing. It's a force. It's a power. We do not know what it is. So distributors also, I have felt, जब अपना टीजर थिएटर्स में चलने लगा विथ स्त्री 2 अक्रॉस द कंट्री, आवर डिस्ट्रीब्यूटर, वेयर इज ही? अच्छा, ही इज नॉट हियर राइट नाउ, ही इज आउटसाइड, राइट. ही गॉट वेरी एक्साइटेड. वो मुझे एवरी अदर डे इज नाउ कॉलिंग मी सेइंग दैट आपका तो ओपन रिलीज करना चाहते हैं हर एग्जिबिटर, शोज बढ़ाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट लग रहा है टीजर पे. तो दैट आई थिंक वो जो जॉनर है वो धीरे धीरे वाइडन होते जा रहा है. सो दैट इज प्रॉब्ली अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. सो और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलेंगी. थैंक यू. मेरा नाम पंकज शुक्ल है, अमर उजाला अखबार से. शुभो और अभिनव दोनों से एक सवाल है. एक तो अभी जैसे प्रशांत ने कहा कि हम लोग हॉरर फिल्म जो देखते हैं, रामसे फिल्म्स की या भाकरी ब्रदर्स की, उसमें हमेशा या तो चर्च का बैकग्राउंड होता था, क्रॉस होता था और कब्र से भूत निकलते थे. ये एक अच्छी बात है कि हिंदू जो संस्कृति है, जो हमारी अपनी संस्कृति है, उसमें भी हम गरुड़ पुराण जैसा एक संदर्भ निकाल कर लाए, उसके लिए आपको साधुवाद है.
तो वो जो कहानी आप ढूंढ करके लाए हैं एक सनातन संस्कृति से, उसमें भी कहीं भय हो सकता है। और हमारे 9 रस जो नाट्यशास्त्र के हैं उसमें 3 रस विभत्स है, भयानक है और अद्भुत है। उन रसों की अगर कोई बात करता है तो जाहिर सी बात है गर्व का क्षण होता है। इस कहानी को बनाने में आपको कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिली, मतलब क्या क्या पढ़ा गरुड़ पुराण के अलावा आपने? तो सबसे पहले तो आई वुड से आई वुड गो बैक टू करुण, बिकॉज अगर करुण ने मुझे बताया नहीं होता पंचक के बारे में तो शायद मुझे पता नहीं चलता। हुआ क्या है, आई थिंक कल्चरली थोड़ा फर्क हो ही जाता है कहीं ना कहीं। सो बंगालीज में ये प्रैक्टिस शायद या तो है नहीं, इसलिए हम भुगत भी रहे हैं शायद आजकल बहुत। मानते नहीं है शायद, इसलिए बहुत भुगत रहे हैं। तो आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, मैंने कभी सुना नहीं, बचपन में भी नहीं सुना और देखा भी नहीं होते हुए। और एल्स मे बी आई हैव बीन वेरी लकी टू हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस अराउंड माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो मुझे पता नहीं चला कभी। लेकिन ये हमेशा पता चला है। तो मेरा एक और इंट्रीग था सर, जब भी कभी मौत होती है किसी की, हमेशा मैंने देखा है घर वाले सबसे पहले पंडित जी से पूछते हैं वो मुहूर्त अपने चेक किया, हाँ तिथि, राइट, व्हेन डिड ही डाई और व्हेन डिड शी डाई। आई थिंक इट्स एक्सट्रीम, दैट क्वेश्चन इटसेल्फ इज द इंस्पिरेशन। व्हाई इज द ट्रेडिशन सो सीरियस अबाउट नोइंग व्हाट एग्जैक्ट टाइम समवन पास्ड अवे? मतलब क्या ही फर्क पड़ जाएगा 4 बजे 5 बजे, ठीक है, शाम को गए। हम तो ऐसा नहीं कहते ना कभी 5:26 को वो the death happened. So that was an inspiration for me to figure out why is it that Kala Harati, time devours everything that is born. That's also, I think, the line from Mahabharata. So that was an inspiration, and we began there. Then because एक और मैंने सुना उसके बाद कि आफ्टर डेथ एक रिचुअल होता है, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। एंड somebody told that I think some of my inspiration also came from my mother. Somebody said that गरुड़ पुराण घर पे नहीं रखनी चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला गरुड़ पुराण खरीद मुझे भेज, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वो घर पे ही रखती है, पढ़ती भी है, ठीक है। अब माँ को कैसे कोई बताए, ठीक है। सो शी इज़ रीडिंग एंड शी ऑल्सो रेड, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग, और मुझे ना पढ़ के डर लगने लगा। ट्रस्ट मी, इफ एनीवन एवर रीड्स, if you read, we always talk about it, we probably don't read it, but if you read, it is very unnerving, right? What's written there is very, very unnerving, and mostly it has to do with time, right? That Kal is so important, what Sir just said, the star systems, the alignment of stars, and just imagine na 5 nakshatra hai, unke ek pattern se pata nahi yahan kya ho jata hai, right? So today morning I read about Louis Pasteur, जिनके बारे में वो pasteurized milk, what we said, he was the one who invented that process. So he says, when you know a little about science, you don't believe in a superpower. When you have read science and you've understood science, you understand that there is a power, right? So I think that is what I've been a student of science, I've been a student of physics actually. तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ा है। या सो जन्म कुंडली, टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बॉर्न, एग्जैक्ट टाइम बर्थ, एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ, तो दैट वाज द इंस्पिरेशन. देन आई रेड गरुड़ पुराण, देन I will not lie, I did not read the entire Mahabharata back again. Okay, confession, कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा है. So I've read portions, right? I've read adaptations, I've read language adaptations because it was easier for me to read maybe. So then I read that as well. Then I started reading comments on, so I've been a very avid follower of the Gita. मैं बहुत बचपन से I think I have it entirely memorized in my mind right now. So that I do, but ये सब पढ़ के, that is where the inspiration came, and then try to in the screenplay do as much as possible. अभिनव से पूछ लेते सवाल कि सुप्रतिम भी साथ में हैं,
तो अभी जैसे गरुड़ पुराण का जिक्र हो रहा था, तो हालांकि ऐसा बात होना नहीं चाहिए सबके घर में, मेरे फादर की डेथ हुई लास्ट ईयर, तो जो दसवें के पहले होता है 10 दिन वो गरुड़ पुराण का वाचन होता है, तो मैंने उसको सुना भी था चूँकि बैठ करके। वो जो वातावरण क्रिएट होता है कि हम इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं किसी हॉरर फिल्म की, सुप्रतिम आपके साथ में है तो आप दोनों लोग बेहतर उसको बता पाएंगे। हॉरर में कहानी बाद में आती है, पहले हम लिखते हैं कि कहाँ कहानी घट रही है। जब भी कोई भूतिया कहानी हम पढ़नी शुरू करते हैं तो रात के 12 बजे हैं या एक वीरान जंगल है, तो वातावरण जो देहरादून में आपने शूट किया है उससे कितनी मदद मिली आपको उस कल्पना को जीवंत करने के लिए जो शुभो ने लिखी है कागज पर? तो पहले तो मैं शुरू करूंगा, मैंने इतना कुछ नहीं पढ़ा जितना शुभोदा ने पढ़ा, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि ये करना चाहिए। दूसरा जो वातावरण की बात है, तो वातावरण एक्चुअली क्रिएट होता है फिल्म में एक डेथ के बाद, ठीक है। एंड द आइडिया वाज कि जब हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे थे और रेकी पे गए, हमने एक घर देखा जो बहुत हॉन्टेड लग रहा था, भूतिया लग रहा था। सो एवरीवन वाज एक्साइटेड कि अरे यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ये है वैसा। देन मैं और शुभदा बाहर आके खड़े हो गए एंड हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा एंड हमने कहा यहाँ नहीं करेंगे। और हमने आई थिंक देहरादून के सबसे प्रिटीएस्ट फार्म हाउस में शूट लोकेशन चुना, क्योंकि आइडिया ये था कि ये जो जिस तरह का हॉरर है ये फिल्म में एक सिचुएशन के बाद शुरू होता है, उससे पहले एक नॉर्मल लाइफ है। सो वी एक्चुअली वांट टू एग्जीक्यूट कि सब कुछ ठीक। Okay, the first call that I received when I heard the name of the film, of course, A Wedding Story. I thought there is romance, there is drama for sure, but I was not expecting horror at all. And I remember going through the narration, I had I couldn't even blink, and I was like, is that even true? And forget Googling. My father is an ardent reader, and also he knows Gita, और उनके सारे अध्याय उनको ज़बानी याद है। तो मैंने जैसे ही पूछा तो उन्होंने बोला ये होता है, ऐसा कुछ मानने या जानने वाली बात नहीं है। You believe a square is a square, a circle is a circle, earth is round, nobody is questioning all these things. So they're like, you can't question. I was like, ये तो बहुत ज़मानों से हो रहा है। So I remember that and how intrigued and curious I became over time over this topic. And I don't even want to say further, something like that after the shoot happened in my family. I don't want to mention it, but it happens. And we were so busy in other things and we didn't even how उन्होंने बोला ना कि तिथि क्या थी वो भी नहीं पूछा. And when the second one happened, we got to know. So then we did puja and everything. But everything is fine, and my family actually didn't want to believe in, you don't want to question it, you don't want to ask, or you don't even expect something like that will happen. But when things go wrong, how do you make sense of what is real, what is not? How to question things and how to get answers, that why me, or So I think it was quite a challenge going through that internal turmoil, that is it even real, or is it something that you are imagining, what will happen, because the family, and that each one of us became so thick. So knowing that and also finding associations in your from your real life, you find that connect, you find the love. But how do you think of the person that you love the most to die, right? So I think there is everything. There is romance, there is the cast, and I think Pilu ma'am is not here, but she played my mother. The father, Dadi is adorable. She calls me Preeti. Even now, she's like, hello, Preeti. Kya kar rahi hai? So that is a connect that as a cast and the crew that we had, and we still have. And I genuinely want to say that the graph of what we went through and also what we read through, translating it on screen to finding it even on the edit, from seeing the transition after the music. I hope you guys really like it, but
I genuinely enjoyed, and I because I went through it also, so I was going through various emotions, and I'm very glad that you asked this question. And thank you. I hope you guys enjoy the film. Thank you. Thank you. So when it comes to the preparation, I feel there is for any character, one is the physical aspect and one is the mental aspect, how he thinks, how he approaches things in his life. My challenge to a certain extent here was I'm playing a Punjabi guy, and I was very particular that it shouldn't go over the board. वो ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि स्पेशली व्हेन आई सी मराठी कैरेक्टर्स, वो जब कैरिकेचर हो जाता है ना, तो ऐसे दिल को लगता है कि नहीं यार, ऐसे कोई नहीं बोलता है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दिस डजंट हैपन विद पंजाबी. Having said that, preparation, I feel it becomes very easy when your writer and your director, they are sorted. So it's like a platter आपको दी जाती है, and these are the things. वैसे ख़राब मत करना, बस ये हमने सब प्रिपेयर करके रखा है. So I guess because of a team like this, as an actor आपका जॉब बड़ा आसान हो जाता है. And what my like दूसरा सवाल था कि मेरा approach change कैसे हुआ. I feel after every project you learn certain things. And the best part of this profession is through the characters that you play, you address your vulnerability. So जो भी किरदार आप निभाते हैं, उसके बाद I guess as an individual deep down, you are a changed individual, I feel. Thank you. So जब हम स्टोरी डिस्कशन कर रहे थे, so बहुत बार ना एक क्वेश्चन आया वैभव की तरफ से कि यार सब बिकॉज फिल्म में जो कैरेक्टर है उसको लेके, तो हमारा डिस्कशन हुआ और मैंने वैभव को बोला यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट. एंड जो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है उसके बाद वैभव ने कभी भी किसी भी तरह का सवाल नहीं किया. एंड फिल्म पूरे होलसम में इन्होंने देखी है, कभी भी अपने कैरेक्टर को लेके फिल्म नहीं देखी है. सो ही एक्टेड सो ब्रिलियंट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही सी फिल्म एज अ फिल्म, नॉट हिज पार्ट. और वो दिख के आया व्हेन आई थिंक स्क्रीनिंग रखी थी और वैभव ने फिल्म देखी, ही एक्चुअली क्राइड एंड ही सेड कि यार यही चाहिए था. आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड, बिकॉज सारे ही एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बट एक एक्टर के लिए फिल्म को पूरी फिल्म की तरह देखना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो अपना ही पार्ट ढूंढते हैं हमेशा. बट वैभव इज नॉट लाइक दैट. थैंक यू सर. आई लव यू टू. थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑनेस्टी, जिससे आपने यहाँ पे इतनी सारी बातें बताई और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे. थैंक यू सो मच. वील हैव अ क्विक फोटो ऑप विद द टीम. या